Welcome to you all to the PYK series. Today we'll be solving numerical analysis from year 2022. So let's go and we'll be solving one by one. Some of the problems are repeated which we have already solved. Some of the problems are new which we'll be solving right now. So let's go ahead. So this is a question we have to solve by Gauss elimination method. Like Gauss elimination method, in order to apply this method, we have to make upper triangular matrix, and we have to apply back substitution. So we will be doing that. So writing in matrix format. The Gauss elimination method is a direct method to solve. There is no iteration involved. So 2, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 3. So we'll be trying to make this 0 because we have to make it in upper triangle matrix. So writing in augmented form. Writing in augmented form, A augment B. This is nothing but AX equals to B. So we write A augment B. So A augment B 2, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 18, 13, 14. So what we'll be doing here? So what we can do here, row 1 can be divided by 2. ठीक है. Then row 2 को हम ऐसे modify कर सकते हैं. Row 2 can be modified as row 2 minus row 1. And after that row 3 can be done as row 3 can be similarly row 3 minus thrice of row 1. So we'll be getting something like this. अगर हम करें इसे तो A augment B 1, 1, 2 is 9. This will become now 0. This will become 2. This will become right now. This will become what? ये 1 हो जाएगा. इसको घटा रहे हैं तो ये 1 को घटा 2 हो जाएगा. अब ये 2 को घटाए तो ये 0 हो जाएगा. बेसिकली ये वाला टर्म सेकंड रो से घटा रहे थे. ये घटा 1 हो गया, 0 हो गया. बाकी ये 9 घटाए 4 हो जाएगा. अब इसका 3 टाइम्स करके घटाया 3 गुना तो ये 0 हो जाएगा. इसका 3 टाइम्स घटाया इसका 3 टाइम्स किया तो ये -2 आ जाएगा. इसका 3 टाइम्स किया -6 -3 आ जाएगा. अब इसका 3 टाइम किया 27 14 - 27 13 - 13. Yeah, I think we are correct. So again we can modify here, like R3 can be written as R3 plus twice of R1. Sorry, twice of R3 plus R2, because this will become 0 and this will remain as it is. Then 1, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0. So minus this will become 4, 9, 4, -9. Yeah. So in equation form, x plus y plus twice of z is equals to 9. Twice of y is equals to 4. Minus of 3y minus of 3z is equals to -3. Then from here, from doing the back substitution, z will come out to be 3, y will come out to be 2, and back substitution
जाएगा 4 x इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 8, 1 9, 1 2 3। आई होप इट सेटिस्फाइज। 2 2 4 4 12, 6 6 12 18, ठीक है। So this is our solution through Gauss elimination method. We can substitute this value into the original equation to check whether these values satisfies our equation or not. If it satisfies, we are done. So moving to the second problem, like this is a relatively simple problem per se. Okay. The first term is like the converting the number into octal and the number into hexadecimal. So it's a relatively straightforward, like we have done this type of question earlier also. So in order to convert decimal into octal, what we do, we apply this normal procedure, like जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते थे तो टू डिवाइड करके टू से डिवाइड करते थे एंड वो रिमाइंडर ऐसा लिखते थे, रिमाइंडर यहाँ पे जाता था और वो जो भी नंबर आ रहा है जो कि फैक्टर में है वो यहाँ पे आता था। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, नथिंग न्यू, सेम इटरेटिव प्रोसेस विल बी फॉलोइंग एंड वी विल बी गेटिंग दिस फॉर इंटीजर पार्ट बिकॉज दे आर यहाँ पे इंटीजर और डेसिमल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। विल बी राइटिंग फॉर इंटीजर पार्ट एंड देन आफ्टर फॉर फ्रैक्शन पार्ट व्हाट विल बी डू हियर, like we will be writing the fraction separately, then after we will be multiplying 8. So जो रिमाइंडर आएगा हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे और जो भी इंटीजर आएगा वो इंटीजर को यहाँ पे लिखेंगे। ये दिस विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग उल्टा चलते हैं कि ये उल्टा चल रहा है, हियर दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, बट इन इंटीजर पार्ट दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो हम लोग इधर से इधर जाएंगे, राइट, जब हम लोग लिख रहे होंगे। सो जब तक जीरो ना आ जाए रिमाइंडर तब तक हमें प्रोसेस करते रहना है, अदरवाइज और या फिर जब तक वो इटरेशन ना, मतलब एक इनफाइनाइट लूप ना बन जाए, तब हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे आगे हम रुक सकते हैं। हम वी कैन से दैट कि अप्रॉक्सीमेटली आवर conversion has reached to a termination stage, like come to a termination stage where we can approximate the fraction which we want to convert into a given binary or given octal or given decimal hexadecimal। तो ये उस पर आके रोक दिया, बस उसको वो बोल देंगे दिस अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू दिस कन्वर्जन वैल्यू। सो हेयर वी कैन से दैट वी डिड सेपरेटली फॉर डेसिमल, वी सेड decimal and this will and we did separately for integer and combining both of them we will get an answer. Similarly for octa hexadecimal 2, similarly we will be dividing by 16 only. For integer part we will got something like this. Similarly if you see here, this remainder part is not going to zero for a very large number of iteration. So what we can say that like this is non-terminating, this is not getting zero remainder because we are not getting zero remainder. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे कि this is not terminating up to this stage, therefore we can use approximation। तो approximation कैसे यूज़ करेंगे अपन कि just जितना हमने परफॉर्म किया है उसको हम अपन इस टाइप लिख सकते हैं। दिस इज a is nothing but a in hexadecimal and rest we all know. Similarly combining both of them and we'll get the final answer. So one question was, it was relatively straightforward, nothing new. So this one question we have to do is a product of max term. So max term is what? Let me write here. पर सबसे पहले तो समझना होता है कि मैक्स टर्म क्या होते हैं। f of x y z, f of x y z, x y x dash z, x y f dash as max term. So what is max term here? Max term is nothing but लाइक मैक्स को ऐसे याद कर सकते हैं कि दिस इज प्लस फॉर्मेट में लिखना होता है हमें।
प्लस वाले फॉर्मेट में लिखना होता है, लाइक समथिंग समथिंग, एंड हेयर प्लस आ रहा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस में आता है. दिस इज मैक्सटर्म इज नथिंग बट सम ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम. सो और मिन टर्म जो होता है, मिन टर्म इज, जैसे मिन आता है तो वो इंटरसेक्शन वाला टर्म आता है, और मैक्स टर्म आता है वो प्लस वाला टर्म आता है. ऐसे याद करना, मिन मिन ऐसे याद करते हैं कि मिन इंटरसेक्शन वाला टर्म आता है, डॉट वाला बेसिकली, और मैक्स टर्म है वो प्लस वाला टर्म आता है. एंड बीच में प्लस है तो बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा. दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सम. सो विल बी राइटिंग our max, we'll be writing this given expression in product of sum kind of format. So xy plus xz, बस आइडेंटिटी यूज करनी होती है. लाइक if you see here, we have to write in something like this, a b b c, something like this. So इसमें आइडेंटिटी यूज कर क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी सी वुड बी बिकम ए बी ए सी. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन. सो विल बी यूजिंग दैट. सो इसको बोला अपन ने ए, इसको बोला बी, बी सी. सिमिलरली तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड प्लस y. Fine, good. So again we'll be doing the same thing. Again we'll be doing the same here also, x plus x bar x z. Fine. Again we'll be doing the same thing here, y plus x bar. X bar is nothing but negation of x. X bar is if x is this, then x bar is the outside area. Basically this is not x. So if you see this is nothing but 1. X plus x bar is 1. So this will become something like this, x z y plus x z. So we have to write the product of sum. So now we have to brought other terms also in this summation. How, what we can do here, we know that x बार ये ज़ीरो होता है क्योंकि इसमें कुछ डॉट मतलब कॉमन, ये x है और x बार इसके बाहर वाले लेने कुछ कॉमन ही नहीं है, देयरफॉर इट इज़ ज़ीरो. अब ज़ीरो को हम कुछ ऐड कर देते, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या करेगी, इसमें y का चाहिए अपन को टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के लिए. तो सम में y की कमी है, तो हाउ विल बी ब्रिंगिंग y हियर, y प्लस y प्लस. ठीक है. सिमिलरली यहाँ भी वहीं करेंगे, यहाँ भी वहीं करेंगे. इससे हमारे पास आ जाएगा जेड का भी टर्म आ जाएगा. सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन, वाई जेड एक्स बार. यहाँ पे जेड बार इज नथिंग जेड, ये जो है इट इज़ नथिंग बट जेड डैश ओनली. दो इस तरह भी लिखते हैं, दोनों नोटेशन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा. अगेन अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी सी इज नथिंग बट ए सी प्लस बी, ए प्लस सी ए प्लस बी. So if you write here, suppose this is a, this is bc, so x plus z plus y, x plus z plus y dash, y plus x z plus x dash z x bar. So this is our final max terms, product of sum, product of sum, max term.
मैक्स में ऐसे याद रख सकते हैं कि मैक्स प्लस होता है मिन इंटरसेक्शन, मिनिमम में कम होता है, थोड़ा सा ही हो जाता है। मिनिमम में कब आएगा? जब वो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। मैक्स कब होगा? जब दोनों का एडिशन होगा ऐसा पूरा। अब मिन कब आएगा? जब दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो वी कैन यूज़ दिस टैक्टिक्स टू लर्न कि क्या होता है, कंफ्यूज होने के लिए, टू अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, तो ये यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर मैक्स टर्म। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, फाइन। This is product of sum, product of max term. Sum is nothing but max term. Now the same boolean फंक्शन के boolean आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेम चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है. So if you write here, combinatorial circuit corresponding boolean function is this: f of x y z is x y bar plus x z plus y. If we take this, so apply same वाला formula, y plus y bar x plus y. कौन वाला formula? a plus bc, ab ac. ये आइडेंटिटी है बुलियन एक्सप्रेशन की. तो ये वाला यूज़ किया अपन ने. तो इसको ये बोला a, ये बोला bc. तो अब ये वाला तो 1 हो जाएगा. अब x अब इसमें क्या करा कि अब इसमें अपन ने x कॉमन निकाल लो. तो x निकाला, ये 1 प्लस जेड प्लस वाई. ये 1 प्लस जेड इज नथिंग बट 1. दिस इज नथिंग बट वाई. आई होप हमने सही किया है. तो कुल मिला के हमारे पास यही आ गया. अब जेड का काम ही नहीं रहा. जेड हैज़ नो रोल टू प्ले इन दिस एक्सप्रेशन. तो अब इनपुट आउटपुट लिख सकते हैं. तो इनपुट आउटपुट टेबल. देन इसको 0 0 1 1, ये 0 1 0 1 प्लस है ना, तो 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा. दिस इज इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन. Yes, this is the expression. This is the table. So it was an easy question. So like moving to the second problem, another problem basically. So we have to apply Simpson one-third rule. So Simpson one-third rule होता क्या है? Like Simpson one-third rule का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है. लाइक सिम्पसन वन थर्ड रूल में क्या करते हैं कि अपन एक स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक से अपन इन सारे वैल्यूज़ को मैच करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, को इंटरपोलेट करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं. सो वी डी टी इज़ नथिंग बट इज डिस्टेंस, इज नथिंग बट Simpson rule is 8 by Simpson 1 by third rule. Distance is h by 3. This is nothing but y0 plus yn. This is y0 is nothing but the term, first term, and you must remember ki like this should always start from 0. Time starts from 0. So this is y0, y0 yn 2 times of y even, 4 times of rest, y rest. जो बच गया उसमें ये डाल दो. तो डिस्टेंस क्या होगा? ये यहाँ पे
कई सारे ट्रैप हैं लाइक इस टाइप का सवाल पहले भी पूछा गया है, सवाल यूपीएससी सीएससी में ही पूछा गया पीवाईक्यू में। इसमें ट्रैप ये है कि लाइक हमें टाइम मिनट में दिया है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो डायमेंशन मैच नहीं हो रहा था। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट। ऑल्सो कि लाइक टाइम जीरो से स्टार्ट नहीं है। अब ट्रेन अचानक से स्टार्ट नहीं हो रहा। लाइक अब इफ़ यू हैव स्टडीड फिजिक्स यू माइट बी नोइंग कि जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है उसके एरिया का अंडर द ग्राफ वो डिस्टेंस देता है। तो यू विल रियलाइज़ कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिस इज एक्सप्लिसिटली मैंशनड। एंड जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब जीरो रहा होगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो रही होगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट टिल टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। So we have to include t equals to 0 at velocity equals पर velocity 0 ठीक है 0 किलोमीटर पर आवर भी होगी। तो इसको बोलते हैं 1 2 3 4। इट विल बी easier for us to know कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ज़ीरो ज़ीरो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 distance h by 3 is nothing but the interval. this is 2 मिनट। 2 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर दें। h is interval length। h को अगर हम इंटरवल को हम लोग आवर में कर दें तो इट विल बिकम 2/3 एज पर द सिम्पसन रूल एंड 60। तब ये आवर में आ गया। नाउ विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ओनली। तो y0 0 yn इज नथिंग बट y11। ठीक है ये सॉरी इसको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 साफ साफ लिखते हैं क्योंकि y 0 से स्टार्ट है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस। सो y10 is nothing but p0 2 times y of even। y of even is 28.8 28.8 46.4 6 is 32 8 is 8 that's all। एंड वे हमने ये कवर कर दिया। 2 हमने ये कवर कर दिया। 4 6 8 अब इसको कवर करा तो ये 16 40 51.2 17.6 that's all। so if we do this 30 तिरका 90 ओके कैलकुलेटर है हमारे पास। आई कैन यूज इट टू फाइंड आउट द एक्चुअल आंसर। 2 into 28.8। सो कैलकुलेटर अलाउ होता है। डोंट फॉरगेट टू टेक कैलकुलेटर विथ यू इन द एग्जाम हॉल। फोर इंटू 16 प्लस 40 प्लस 51.2 प्लस 17.6 प्लस 3.2 this will come out to be 742.40। if we divide by 90 this will come out to be 8.24889 kilometer। yes this is the answer। again it was an easy question
जस्ट यू टू फाइंड आउट कि क्या ट्रैप थे यहाँ पे, लाइक टाइम को जीरो से स्टार्ट करना था, लाइक एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स वी मिस बिकॉज टाइम और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब कंपैटिबल नहीं है बेसिकली। तो वी इंटू डी टी करना वुड बी नॉट बी एबल टू गिव अस द फाइनल आंसर, द एक्यूरेट आंसर with accurate dimension. So, so Runge-Kutta method for others, we have to solve for this वाला differential equation. हमें even initially हमें given है x 0 0 0 1 0 and y of 0 y naught is 1. So y naught is nothing but at x equals to 0. सो वी हैव टू यूज़ द 4 डेसिमल प्लेसेस फॉर कैलकुलेशन। लाइक कैलकुलेटर में ये खास बात होती है कि लाइक यू कैन सेटअप यू कैन चेंज द सेटअप एंड फिक्स कि किस डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर चाहिए। तो इफ़ यू आर यूजिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मतलब इन प्रीवियस वीडियोज़, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन सा कैलकुलेटर सही रहता है एंड कहाँ से यू कैन लर्न कैलकुलेटर। लाइक I had told you कि मतलब FX 991 ES plus, this is the calculator which can cater to all your needs related to UPSC CSE, and these were the channels like PYQ एक channel है and एक Paurush Shood sir का भी है। तो you can watch these videos, इन चैनल को वॉच करके इन पे जो वीडियोस पड़े उनको देख सकते हो एंड हाउ दे आर implementing a particular steps, particular procedure in order to solve a particular kind of problem, like whether it could be Newton-Raphson, secant method or any other. You have to just see कि कैसे वेरिएबल असाइन करते हैं, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, कैसे अपन वेरिएबल्स को क्लियर करते हैं, कैसे अपन रेडियन में चेंज करते हैं, कैसे अपन एनी प्रोसेस लाइक मतलब अपन मैट्रिक्स लिखते हैं, कैसे अपन बेस्ड में अगर चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स which where calculator will be very handy to not only to solve your answer, not only to solve your question but also to verify कि जो आपने आंसर आपको मिला है आर दोज आंसर एक्यूरेट, मतलब जो न्यूमेरिकली मतलब जो आपने हाथ से करके निकाला है थ्रू कैलकुलेशन, are they actually accurate? So you can verify using calculator those answers. So you must learn कि मतलब कैलकुलेटर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम बट ऑल्सो टू वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। सो यहाँ भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। सो आई विल बी राइटिंग द Runge-Kutta method. This is the most popular, most frequently asked question in order to solve the differential equation. So writing the Runge-Kutta method, Runge-Kutta as per Runge-Kutta method, say f of xy is dy by dx is x plus y square so we have to solve this. So y of 1 is nothing but y of 0 plus 1 by 6 times of k1 plus twice of k2 plus twice of k3 plus k4 where k1 k2 are, k1 क्या होता है, k1 is nothing but h times of f of x and y n, मैं जनरल के लिए लिखूँ तो मैं n plus 1 कर दूँ, ठीक है, h times of f of x n plus h by 2 basically step size yn plus k1 by 2. K1 by 2 is nothing but this wala. K3 would be
h times of f of xn plus h by 2 yn plus k2 by 2. k4 would be h times of f of xn plus h y of kn plus k3. This would be our iteration. इसको परफॉर्म करना है. तो फॉर n equals to 0, y1 would be, बस सेम हमें इटरेशन ही परफॉर्म करना है. एंड वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलतियाँ ना हो. लाइक यहाँ पे इन्होंने चिल्ला के बोला है कि 4 डेसिमल यूज़ करना है. वी डू नॉट हैव टू मूव अहेड, मतलब ज़्यादा मोर प्रिसाइज आंसर लेके नहीं आना है. वी कैन नॉट गो अप टू 9 डेसिमल. वी हैव टू जस्ट फिक्स कि 4 डेसिमल तक ही चाहिए. अगर उससे ज़्यादा फिक्स करते हैं, भले ही आंसर एक्यूरेट आएगा, मोर एक्यूरेट आएगा, बट इट विल बी नॉट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. सो वी हैव टू टेक दोज थिंग्स इन कंसिडरेशन कि पूछा क्या है एंड क्या हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं जो कि उन्होंने पूछा है. सो वी हैव टू टेक ऑल दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. So this is h step length, and now we'll be solving y of 0 is nothing but 0, 1/6. So पहले क्या करते हैं कि h1 is 2, k1 k2 निकाल लेते हैं, तभी तो रखेंगे अपन इक्वेशन में. तो k1 would be, you can use calculator here also, कि कैलकुलेटर में 0 1 और इसमें सिर्फ क्योंकि हमें 2 ही इटरेशन चलनी है तो बस अपन ये यूज़ कर सकते हैं. 0 1 कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक एफ ऑफ, यू कैन राइट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, और वी कैन पुट वेरियस वैल्यूज़ कि एक्स के क्या वैल्यूज़ है, वाई के क्या वैल्यूज़ है, वो पुट कर सकते हैं. लाइक मतलब व्हेन यू लर्न कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं, यू विल रियलाइज़ कि फील आएगी. व्हेन यू हैव प्रैक्टिस द कैलकुलेटर ऑन फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, यू विल रियलाइज़ कि यू विल कैसे प्रोसीड करना है. एफ ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट x 0 and y is 0. So this will come out to be 0.1. I am writing it directly, like जब रखेंगे अपन यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 into 0.1 is 0.1. k2 would be 0.1 f of 0 plus h by 2. h by 2 is nothing but 0.05. Yes, so this will come out to be 0.11552. ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, that's why I'm writing it directly, but it is not a rocket science कि कैसे कैलकुलेट करना है. So you can do it on your own. Again, अब यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस इसका आधा, this will give us 0.169. k4 would be 0.1 f of 0.1, ये 1 प्लस 0.1169 by 2. नहीं 2 क्यों करेंगे, तो यहाँ पे पूरा आता है. This will give us 0.1347. Now अब हम क्या करें कि y of 1 is nothing but y of 0.1 is nothing but y of 0 plus 1/6 times of k1 plus twice of k2 plus twice of k3 plus k4. This will give us, जब हम वैल्यू पुट करके निकाले अपन, k1 की वैल्यू हमारे पास 1 0.1
ट्वाइस ऑफ K2 की वैल्यू हमारे पास 0.1152, ट्वाइस ऑफ 0.1169, 0.1347, राइट। अगर हम कैलकुलेट करें अपन तो कितना आएगा, टू प्लस 0.1169 प्लस 0.1347 डिवाइड बाई 6, y of 0 is 1, so this will give us 1 plus 0.1165, this will be 1.1165, yes. Similarly this is y of 0.1, for n equals to 2 करेंगे अपन तो सेम प्रोसेस, सेम K1 K2 निकालेंगे, सेम K2 K3 निकालेंगे एंड वी विल पुट इट, सो सेम चीज़ करनी है, वी हैव टू इटरेट द सेम फार्मूला h इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, यहाँ पे अब आएगा एफ ऑफ x1 y1, क्योंकि इफ यू सी द फार्मूला यहाँ पे आता है xn, तो यहाँ पे हम n को हम लोग 1 कर रहे हैं, सॉरी हाँ, मतलब सेकेंड इटरेशन, ये दिस इज इटरेशन 1, this iteration will give us 0.1 की y of 0.1, for this is, if it is 1, so this will be for iteration 2, for n equals to 1. So again if we do this, it will be nothing but 0.1347, K2 would be 0.1551, K3 would be 0.1576, K4 would be, I think I did wrong on, तो यहाँ पे y2 would be y1 plus 1/6 times of twice of, sorry, K1 plus twice of, this is K1 not twice, K2 plus K3 K4, this will give you y1 we know, यहाँ पे वे वैल्यू था 1165 प्लस 1/6 टाइम्स ऑफ, क्या वैल्यू आता है कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल फाइनली गिव यू समथिंग लाइक दिस, मेरे पास फाइनल वैल्यू लिखा हुआ है 1.2736, सो दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेटर में भी रख सकते थे, कैलकुलेटर में कैसे रखेंगे, लाइक से दिस इज इक्वेशन ए प्लस ये वाला इक्वेशन को, हाँ ये वाला इक्वेशन को एफ एक्स को, दिस इज ए प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब एक्स की वैल्यू अलग देते, ए की वैल्यू अलग देते जाओ, बी की वैल्यू अलग देते जाओ, यू विल बी गेटिंग वेरियस K1 K3 K4, बट करना तो पड़ेगा ही, लाइक यू हैव टू इंडिविजुअली फाइंड आउट कि क्या है। यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज़ विच आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक बताया है, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ बताया, बट प्रॉब्ली दे हैव टोल्ड यू लाइक कि कैसे करते हैं। सो यू मे वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट अ बेटर क्लू। कौन सा वीडियो? PYQs यूट्यूब चैनल है, एक पौरुष सर का है, पौरुष, check the spelling please, Porush, yeah. So these are the two videos two channels basically, so where you can watch ki what are the steps in order to solve, in order to write equation, in order to calculate, in order to write equation, in order to calculate the values of transcendental equation and all. So that's all for my side. Thank you all.